آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جو براڈ کرتے ہیں وہ آج کل کوئی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کی براڈ ہوتی ہے. اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانی ہماری براڈ کو رپورٹیں کرتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں جب نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے تو پھر ہم جلدی جلدی براڈ کو گرا دیتے ہیں. اگر ہم براڈ کو نہ گرائیں تو پھر ہمارے اوپر پابندی لگ جاتی ہے, 8-10 دن کی پابندی لگ جاتی ہے. تو اس پابندی سے بچنے کے لیے پھر ہم براڈ کو ختم کر کے نئی براڈ کو شروع کر لیتے ہیں. یہ اصل میں طریقہ کار ہے. کوئی سوال کسی نے کرنا ہے, کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کال کر سکتے ہیں. میں ہر دفعہ یہ عرض کرتا ہوں کہ علمی گفتگو کیا کریں. بک 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 کا کوئی فائدہ ہے بتائیے؟ آپ اپنا وقت بھی برباد کرتے ہیں, ہمارا وقت بھی, سننے دیکھنے والوں کا وقت بھی برباد کرتے ہیں. کوئی کام کی بات کریں, کوئی کسی علمی موضوع پہ بندہ کوئی گفتگو کرتا ہے بیٹھ کے, تو سوال بھی پھر ایسا ہونا چاہیے کہ جو علمی نوعیت کا ہو. بسا اوقات سوال بھی کوئی جاہلانہ قسم کے سوالات کبھی کبھی کرتے ہیں کہ جن کا کوئی جواب ہی نہیں ہوتا. وہ پھر وہ کہتے ہیں نا جیسا منہ ویسی چپیڑ, وہ پھر ہمیں بھی ویسی چپیڑ مارنی پڑتی ہے منہ دیکھ کے کہ بندہ جس طریقے کا ہے اس طریقے کا اس کو پھر جواب دینے کے اوپر ہم مجبور ہوتے ہیں. تو آ جاؤ بھائی, جلدی جلدی کال کر لو, کوئی پھر بات کرتے ہیں. چائے بھی میرے سامنے رکھی ہوئی ہے, چائے بھی میں ساتھ ساتھ پیوں گا اور ساتھ ساتھ بات بھی کریں گے ہم. ہاں جی, گفتگو بھی ہوگی. اچھا, وہ جو مرزا قادیانی کے بارے میں ویڈیوز آج کل اپلوڈ کر رہا ہوں, کون کون دوست دیکھ رہے ہیں کوئی بتائیے گا. مرزا نے لکھا ہے, یار یہ رومن مجھے سے نا پڑھی نہیں جاتی. کوئی سوال ہے تو آپ کال کر لیجئے, یہ یوزر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا مرزا قادیانی کو حرامی ثابت کرنے کا, یہ اصل میں وجہ یہ بنی تھی کہ کالر آئے ہیں کوئی, قادیانی جو ہے وہ شاطمیت سے باز نہیں آ رہے تھے. ان کو ہم نے سمجھایا, کئی دفعہ سمجھایا کہ انسان دے پتر بن جاؤ, بندے دے پتر بن جاؤ, اور ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو, ہمارے سوالات ان کے جوابات دو. لیکن قادیانی مسلسل شاطمیت کرتے رہے. تو پھر مجبوراً ہم نے وہ پھر سلسلہ شروع کیا کہ اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی حقیقت کیا ہے, اس کی اصلیت کیا ہے. تو یہ بڑا مجبور ہو کہ ہم نے یہ ڈیسیژن لیا. ہاں جی, کر لو یار, کوئی کال کر لو بھائی, کوئی سوال جواب کر لو. وہ ڈبل ٹیپ کرو یار سارے دوست, براڈ کو ڈبل ٹیپ کریں اور براڈ شیئر کیجیے. اچھا, میری نئی کتاب ایک آ رہی ہے, ابھی تو ایک آ رہی ہے قادیانی توحید. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو کتاب آ رہی ہے وہ ہے مرزا چوڑا, جس میں ہم نے مرزا قادیانی کو چوڑا ثابت کی ہے. کالر آئے ہیں آپ, پہلے کالر. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہو, طبیعت سے ٹھیک ہے؟ شکر ہے جی, سوال کریے جی. میں نے آپ سے ایسے تو سوال, ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میں نا ایک کل رات کو میں نا ایک قادیانی کی براڈ پر گیا, تو وہ ان لوگوں نے لکھا ہوا تھا
کہ جو مطلب ابھی جو میرے ذہن میں سے نکل گیا ہے، خاتم کا مطلب آخری نبوت کا سوری نبوت کا سلسلہ جاری ہے. تو میں ان کی براڈ پہ چلا گیا، کال میں نے کی، چلا گیا تو باتیں کی. میں نے کہا یار آپ لوگ یہ بتاؤ بھائی احمد نا کہ دنیا میں بہت آدمی ہیں، کیا وہ سب کہیں گے بھی میرا نام بھی احمد ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، میں بھی یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں؟ وہ چپ، نہیں یہ کوئی اور کیسے کر سکتا ہے؟ میں کہا جیسے اس نے کیا ایسے کوئی اور بھی کر سکتا ہے. میں نے کہا پھر آپ لوگ چلو اس سوال کا بھی آپ لوگ جواب چھوڑو. میں نے کہا آپ پھر یہ بتا دو، یہ سوال تو سخت ہوگا میرے خیال میں آپ لوگوں کے لیے، اگر کوئی کہے کہ آپ لوگوں کا ڈی این اے میرے سے میچ ہو رہا ہے، کہ آپ لوگ یہ بولو گے بھائی ماں یہ کیا ہے؟ اگر آپ لوگ یہ اس پہ بات نہیں کر سکتے ہو تو پھر تو آپ فارغ ہو نا، پھر تو آپ نبوت کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتے. میں نے رات کو پھر ان کو کافی سنائی ہے، لیکن ان لوگوں نے بھی جو کیا وہ پھر کرتے ہیں. لیکن جتنی جگہ تھا میں نے وہ بات کی ہے، جو میرے پاس جتنا بھی تھا. بہت حد میں پڑھا لکھا نہیں ہوں الحمدللہ، جتنا بھی ہوں، لیکن دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہی ہوں. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام محمد ارشد. اسکول کتنا پڑھے؟ جی اسکول کتنا پڑھے؟ 1 کلاس بس. دین کی کوئی کلاسیں پڑھے؟ نہیں میں نہیں، جو تقریباً جو سپارہ بھی وہ بھی میں 30ویں سپارے تک پڑھا ہوں. تو میرے بھائی جب آپ پڑھے ہی نہیں ہیں، نہ ہی دین پڑھے نہ ہی دنیا پڑھے، تو پھر کیا ضرورت پیش آئی آپ کو قادیانیوں کے ساتھ بات کرنے کی؟ نہیں وہ کرنی پڑتی ہے، کوئی نہیں، وہ جو کرتے ہیں وہ بھی تو غلط کر رہے ہیں نا. وہ ایک ہیر بھائی ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے بات ہوئی ہو، وہ ایک ہیر بھائی ان سے بات کرتا ہے، ان لوگوں کا اس نے جواب ہی نہیں دیا. میں نے کہا چلو ان کا تو نہیں جواب دیتا، میں جاتا ہوں کچھ کرتا ہوں، لیکن ان لوگوں نے مجھے پھر نیچے اتار دیا. بات ہی نہیں، کوشش ہی کرنی پڑتی ہے نا. سوال یہ نہیں کیا میں نے کہا جب آپ کے پاس علم نہیں تھا تو آپ قادیانیوں کی براڑ پہ کیوں گئے؟ میں یہ سوال ہے میرا. چلے اگر یہ میری غلطی ہے تو میں اپنی تسلیم کرتا ہوں. آپ مجھ سے بڑے ہو، تسلیم کر لینی چاہیے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک. آپ نا ہماری براڈوں کے اوپر آ کے بیٹھ کے پہلے کچھ سیکھا کر. اچھا یہ عمر صاحب کوئی آئے ہیں، عمر بٹ صاحب. جی جناب. جی عمر بٹ صاحب. جی السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام. جی بٹ صاحب اللہ کا شکر ہے، فرمائیں. کافی دنوں بعد آپ کو دیکھا جی، ماشاءاللہ آ نہیں رہتے شاید آپ. میں لائیو ہی ہوتا ہوں جی، حکم فرمائیں. مفتی صاحب بس ویسے ہی کہ کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو سنتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے، آپ جیسے قادیانیوں کے خلاف بات کرتے ہیں اور لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، ہمارے مسلمانوں کو. کچھ عرصہ پہلے تک تو میں آپ کو بالکل نہیں سمجھتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ شاید صحیح آدمی نہیں ہے. تو یہاں تک کہ میں خود بھی براڈ لگاتا رہا ہوں، آپ کی عجیب و غریب تصویریں بنا کے لگاتا رہا ہوں، لیکن الحمدللہ آپ ایک اچھے انسان ہیں. میں اب آپ کو سنتا ہوں اور بڑا محبت رکھتا ہوں اب آپ سے. بس یہ ہے، تو یہ بات. بٹ صاحب رکیں ذرا تھوڑا سا، میں ایک اپنے لسنر کو کوئی ایک بات بتانا چاہتا ہوں. یہ بات اب یہ دیکھیے آپ کے سامنے ایک اگزامپل موجود ہے. عمر بٹ صاحب کی آئی ڈی ہے، میں ان کو نہیں جانتا، بقول ان کے کہ یہ میرے خلاف براڈیں لگاتے رہے. ٹھیک ہے، اب جس طریقے سے میں ان کو نہیں جانتا یا ان کی اس براڈ کو نہیں جانتا کہ جو میرے خلاف لگی، ایسی سینکڑوں یا ہزاروں، مجھے تو نہیں پتا، لگ رہی ہوں گی براڈیں جن کا مجھے علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان میں سے اکثریت جو ہے نا ان کو ورغلایا گیا. عمر بٹ بھائی کی ابھی پوچھ لیتے ہیں، ابھی پتا چل جائے گا. ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے کسی سے سنا،
اور کسی ایسے سے سنا کہ جس کو یہ پسند کرتے تھے، اور اس شخص نے میرے خلاف براڑ لگائی ہوگی، انہوں نے اس سے متاثر ہو کے صرف آنکھیں بند کر کے براڑ لگانی شروع کر دی یا گالی نکالنی شروع کر دی۔ بیچ میں معاملے کی حقیقت کا نہیں پتا کہ اصل کیا ہے، ہوا کیا ہے، بندہ کون ہے، اس کے عقائد و نظریات کیا ہے، اس کا موقف کیا ہے، وہ کہتا کیا ہے، آیا جس بندے نے براڑ خلاف لگائی ہے اس کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے، ان کو نہیں پتا۔ تو اکثر ایسے ہوتا ہے صاحبان، اکثر ایسے ہوتا ہے۔ تو وہ حکم ہے ہمیں کہ جب فاسق کوئی تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ مسلم شریف کے مقدمے کے اندر ایک حدیث لکھی ہے، حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پیش کر دے، اس نے تحقیق نہیں کی، ریسرچ نہیں کی، اس کو پتہ نہیں ہے معاملہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وہ آگے اس نے نشر کرنا شروع کر دی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس قسم کی بات۔ اچھا اگلی بات ایک اور جو بات کہنے لگا تھا، یہ جو مخالفین ہیں نا میرے یا کسی اور کے بھی، تو یہ بڑے کام کے ہوتے ہیں، بہت کام کے ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں کیا کرتے ہیں، یہ آپ کو مشہور کرتے ہیں، یہ آپ کی مشہوری جس کو نہیں بھی پتا اس کو بھی بتاتے ہیں کہ فلاں بندہ ایک ہے۔ تو میں اپنے لڑکوں کو بھی روکتا رہتا ہوں جو ہماری ٹیم ہے کہ کسی براڑ کا ذکر اپنی براڑ پہ کرنا ہی نہیں، کسی بندے کا ذکر اپنی براڑ پہ کرنا ہی نہیں۔ اس میں ہوگا یہ کہ تم اس کی مشہوری کرو گے، جس کو نہیں بھی پتا وہ بھی اس بندے کو تلاش کرے گا کہ بندہ کون ہے۔ تو میں نے اپنے لڑکوں کو بڑی سختی سے روکا ہوا ہے، بشمول میری پوری زندگی گزری ہے، میں نے کبھی کسی فرد کے رد کے اوپر کبھی کوئی کام نہیں کیا۔ نجف کے خلاف میں بولنا شروع کر دوں، فلاں کے بارے بولنا شروع کر، نہیں میری عادت ہی نہیں۔ مرشد اینی تے بولو میرے واسطے، میں بھی تو مشہور ہوں۔ سناؤ کی حال میں ایک تعلیم کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ تو عمر بٹ بھائی کی آئی ڈی آپ کے سامنے موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے آپ کے بارے میں پتا چلا تو اب میں نے چھوڑ دی ہے، آپ کام اچھا کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھا نا، وہ بندہ جن سے انہوں نے تربیت حاصل کی تھی وہ میری مشہوری کا باعث بنا کے نہیں بنا۔ مفتی صاحب آپ میرے الحمدللہ فیوریٹ انسان ہیں، یعنی کہ آپ الحمدللہ میں آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور اس سے زیادہ آپ کو ان مرضیوں کے خلاف آپ کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ بڑھ صاحب پتہ ہے کیا، ایک چیز ہے، ایک چیز یہ نجف بیٹا شیعہ ہے، میرا مکتب فکر کا نہیں ہے، میں ان کے مکتب فکر کا مخالف ہوں، فکری طور پہ مخالف ہوں، لیکن یہ ہمارے دوست ہیں۔ ہمارے پاس دیوبندی، وابی، شیعہ، سنی، سارے ختم نبوت کے پلیٹ فارم کے اوپر سب ہم ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے لڑتے ہیں۔ ہمارے ہاں عمر بٹ بھائی مکتب فکر فرقہ جس کو لوگ کہتے وہ نہیں ہوتا۔ ابھی یہ اہیر آیا ہے، اہیر وابی ہے، دوست ہے میرا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ چلتا ہی نہیں ہے فرقے فرقے، ہم نے کبھی فرقوں کی پرواہ بھی نہیں کی۔ ہمارے تو صرف ایک فتنہ جو قادیانیت کا فتنہ ہے نا وہ بس زیر بحث رہتا ہے بس، اور ہم کسی کو جانتے نہیں۔ میں اسی وجہ سے آپ کو دل سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آپ سے دل سے محبت کرنے کا میں اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آئی لو یو مفتی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں خوش رہیں۔ الحب للہ اس کو کہتے ہیں، الحب للہ والبغض للہ۔ محبت بھی کرنی اگر کسی سے تو اللہ کے لیے، نفرت بھی کریں گے تو اللہ کے لیے۔ بالکل یقینی سی بات ہے، آپ نے اگر مجھ سے نفرت جن دنوں کی ہوگی تو وہ اللہ کے لیے کی ہوگی۔ کوئی آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی کہ یہ اللہ رسول کے مخالف ہے یا دین کے مخالف ہے، بالکل۔ تو جب نفرت کی تھی تو اس وقت
तो अब मोहब्बत की है तो अब भी अल्लाह के लिए की है ना। ये सर, सलामत मोमन रहें, की मोमन खुश की रहें। फितरत है, मोमन की फितरत में ये चीज शामिल है। सलामत रहें, खुश रहें, शादी पल्लो हीर भाई दी काल तमाम नेमतों से नवाजे। और इसी तरीके से आप जिस तरह काम कर रही हैं, मैं चाहता हूं कि इससे भी अच्छे तरीके से करें और सारे भाई आपके साथ लग के करें, जितने मुसलमान भाई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खुश रहें, आबाद रहें। मुफ्ती साहब, मैं दोबारा कहूंगा, आई लव यू सो मच। जज़ाकल्लाह जी, बहुत खुश रहें। मैंने अल्लाह हाफ़िज़। फैसल भाई को भी उठा लिया है, हबीब साहब को भी उठाया है, पता नहीं नजर नहीं आ रहे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुर्शद मुर्शद वालेकुम कैसे हैं? अल्लाह शुक्र। सुनाओ। मैं क्या उत्ते उत्ते साडा भाबियां दा जिक्र करी जा रहे हो, सानू काल नहीं ओ कोई बंदा भाभी आया नहीं, सी कोई सुन्नी नहीं, ते कोई ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ देवबंदी चलो नहीं, तालीम और तरबियत वास्ते फकत- कुछ अर्ज कर दईए। फकत मुर्शद आका दे गुलाम, फकत आका दे गुलाम, आका दे वो। बाकी कुछ भी नहीं है। हीर भाई, बाकी मैंने यकीन आपका करो, नाम पहले लिया है। कुछ भी नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले कार्ड ऐड किया तो मैंने आपका नाम लिया। मैंने कहा वो भी उनके पीछे मैं एक दिन गया हूँ, तो बस उधर से फिर मैं उनके पीछे पड़ गया हूँ। तो बस नहीं, मैं कहने सुनी- का मकसद ये है कि देखिए कि किसी तंजीम के खिलाफ नहीं, हम किसी फिरके के खिलाफ नहीं, किसी बंदे के खिलाफ नहीं, किसी मौलवी के खिलाफ नहीं, सियासत के खिलाफ नहीं, हुकूमत के खिलाफ नहीं, पुलिस के खिलाफ नहीं, मतलब किसी के खिलाफ भी नहीं। हमारा सिर्फ एक इख्तलाफ है, वो है कादियानियों से। समझ आई? वाज़े तरीन मौकफ, वाज़े तरीन एक मौकफ, ये वो मौकफ है जो हम हजारों दफा बयान कर चुके, एक दो दफा नहीं, हजारों दफा, और शुरू दिन से बयान कर रहे हैं कि हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं। हमारा अगर इख्तलाफ है तो सिर्फ कादियानियों से है, और बस। हाँ, यही वजह है कि सारे मुकातबे फिक्र वाले हमको आई लव यू बोलते। हाँ, ये बात है, सभी सभी प्यार करते, सारे लोग प्यार करते, हमें सियासी लोग भी प्यार करते हैं, हमें पुलिस वाले भी प्यार करते हैं, फौज वाले भी प्यार करते हैं, सारी तंजीमें प्यार करती हैं, सारे फिरके प्यार करते हैं, और पूरा पाकिस्तान प्यार करता है, पूरी दुनिया के मुसलमान प्यार करते हैं। वजह उसकी ये है कि हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते, हम सिर्फ कादियानियत, रद्दे कादियानियत, बस। इधर उधर किसी मौजू पे हम जाते ही नहीं है। हमें नहीं पता कौन क्या करता है, क्या करे ना करे, उसने जन्नत में जाना है, जन्नत में जाना उसकी सरदर्द है, हमें किसी से कोई लेना। समझ आई कि नहीं? और इन दीगर मौजूआत पे बात करने के लिए दीगर और बड़े उलमा इकराम मौजूद हैं। जरूरी तो नहीं कि हम अब अपना काम छोड़ छाड़ के ये काम शुरू कर दें। हाँ जी, तो इसी वजह से हम अपने मौजू से ना ही कभी हटे हैं। मेरी देखें कितनी किताबें हैं, कितनी किताबें मेरी छप के आ गई, कितनी मैंने वाबियों के खिलाफ लिखी हैं, देवबंदियों के खिलाफ, शियों के खिलाफ, या मौलवियों के खिलाफ, पीरों के खिलाफ, या इधर उधर बड़े मौजूआत हैं, कितनी लिखी। वजह उसकी मरकजी ये थी कि मेरा कंटेंट ये नहीं है, मेरा कंटेंट सिर्फ एक है, रद्दे कादियानियत। और फिर मैं ऐसे ना की वो सीत की कहते हैं पंजाबी च, सीत टुरी गया, बस टुरी। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਲਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਲਾਮ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਦਿਓ ਔਰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਅਗਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਕਾ ਜਾਫਰੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲ, ਸਿੱਕਾ ਜਾਫਰੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜੀ, ਤੇ अल्लाह सलामती का ता फरमाए। बस एक ही पैगाम है, सबको एक ही पैगाम है, जर्नली तौर पे। नाम नहीं मैं लेता, मेरी आदत ही नहीं है, नाम नहीं लेता, सिर्फ खत्म नबूवत का काम कीजिए। अपने तुम्हारे इख्तलाफ हैं उनको छोड़ दो, अल्लाह रसूल के लिए छोड़ दो, आपस में इख्तलाफ ना रखो,
आपस में हमारे बड़े भाई आपस में एक दूसरे के साथ ना वो चुंझा लड़ाते रहते ने, अंजन अंजन अंजन। ना करया करो यार। मिसाल एक बंदे से तुम्हारी नहीं ना बनती, जहनी हम आहंगी नहीं, तुम नहीं समझते कि उसका मजाज लग गया, तुम्हारा मजाज लग गया, ठीक है, वो तुम ये कर सकते हो कि तुम उसकी बराड़ पे ना जाओ, वो तुम्हारी बराड़ पे ना आए, बस बस इतना ही है, ठीक है, बस काफी। क्योंकि जहनी हम आहंगी नहीं है ना, मजाज एक नहीं है, तो एक दूसरे की बराड़ पे आना जाना छोड़ दो, बस ठीक है। लेकिन वो भी दायमी नहीं होना चाहिए, वक्ती तौर। क्योंकि गुस्सा है ना, गुस्सा, तो गुस्से के हालत में वो हुक्म नहीं है कि खड़े हो तो बैठ जाओ, हैं, बैठे हो तो लेट जाओ, ठंडा पानी पियो। तो गुस्से को जरा थोड़ा सा वो कूल करने के लिए वक्ती तौर पे थोड़ी सी अलैदगी कर लो कुछ दिन के लिए, लेकिन बाद में जब गुस्सा ठंडा ठंडा हो जाए फिर एक हो जाओ, फिर की मसला है। शायद एक तरीका और भी तो हो सकता है। हाँ हाँ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਪਵੇ ਮਨਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ वैसे ਸਕਦੀ। जज्बा फैसल है नहीं मुंडे, है नहीं, सिर्फ एक जुबान दी हद तक वे, एक कोलो इकरार दी हद तक है नहीं जे। ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ नहीं पिया, मैं वेंदा नहीं पिया, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਔਰ ਮੇਰੇ मोहतरम ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਲੱਭ ਗਏ ਹੋ। ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਹਾਤਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮਰਜ਼ਹੀ ਨੇ। ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 90 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਡ ਸੀ, ਅਰਬੀ 'ਚ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਫਲਸਤੀਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਹਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਹਾਨੀ ਆਇਆ ਫਿਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਨੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਹਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਹਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਰਬੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨੇ, ਅਰਬੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਰੱਬੀ ਸਨ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅਰਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਾਲਬਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਲਿਮ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਠੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਰਾਡਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਓ ਜੀ ਅਰਬ 'ਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜੀ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਰਬੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਐਕਸ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਜੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ शायद, लेकिन आवाज तो यंग, मतलब वो काफी यंग जिहा लगदा है, जिस तरह मेरे वांगू मुंडा। मेरा भी अज तक नहीं उन्हां नाल कोई राबता शाबता ते नहीं होया, शायद WhatsApp ते सेफ होण मेरे नाल, लेकिन हानी ओही ने फिर मैनू जिथों तक लगदा। तहकीक करोगे ते कुछ गल विचों निकल आएगी। चलो पता करने शायद। साहिल भाई आ गए ने, और मियां की हाल ही जी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह पाक सोने दा। हां सुनाओ फिर कोई नवी। सुन रहा हूँ मुफ्ती साहब, आपकी बातें सुन रहा हूँ, मजा आ रहा है। मुफ्ती साहब एक सवाल है कि एक सवाल है, ये रेडियो बंद होगा? सवाल है, ये सवाल है। लाइव कॉल कर लो ना, लाइव कॉल करके सवाल करीदा हुंदा। सवाल जो करीदा है ना वो लाइव कॉल ते करीदा हुंदा है। वो सवाल के जेड़ा टिप टिप च होए है
ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮਰਜ਼ਈ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ 313 ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀ ਲੱਗਦਾ ਫੇਰ ਆ ਗਏ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਬੱਕ ਬੱਕ ਤੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਾਲ ਤੂੰ ਫੇਰ ਪਾਈ ਏ, ਗੱਲ ਤੂੰ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ ਕੋਈ क्या ਤੇ ਵੀ ਬੱਕ ਬੱਕ ਕਰਨੀ ਜੇ ਕਰ ਲੋ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। नहीं नहीं चुप ना हो, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਸਲੀ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਉਹ ਬੰਦਰ ਔਰ ਸੂਵਰ ਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਸਲੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹਵਾਲਾ ਕਰੀਏ ਦੋਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿल्लाह। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਪਿਗਾਮੇ ਸੁਲਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਇਤ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਸਾਹਮ ਦਿਖਾ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੇ ਨਾ, ਤਾਵੀਲ ਤਲਬ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਹਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਦਿਓ ਜਰਾ, ਸੁਣ ਤੇ ਲਵੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਖਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਗਾਮੇ ਸੁਲਾ ਅਖਬਾਰ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਿਗਾਮੇ ਸੁਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੇ 15, ਇਹਦਾ ਸਨ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1934, ਕਾਲਮ ਨੰਬਰ 3 ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਇਬਾਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਇਬਾਰਤ ਪੜੋ ਹਜ਼ਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਜਰਾ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪੜੋ ਜਰਾ। जी मुफ्ती साहब तुसी मुकम्मल कर लिया? मैं क्या इबारत मैं पढ़ दिया कि तुसी पढ़नी है? जी मैं तो पहले भी आख्या सी अखबार के अंदर कुछ भी शामिल हो सकता है। मिर्जा साहब दी रोया किथे लिखी है? असली हवाला खोलो रूहानी खजाने दे अंदरों गल मुक जी खोलो दसो की है। ए देखो खुद कहंदे ने पे कि अपने गिर्द बहुत से बंदर और सुअर वगैरह देखे और इस्तेदलाल ये किया कि ये जमाते अहमदिया के लोग हैं। ठीक हो गया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਵੀਲ ख्वाब ਤਾਵੀਲ ਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਇਆ ਤਾਵੀਲ ਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਨੋ ਅਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਬੀਰ ਹੈ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦਰ ਸੁਵਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਬੀਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਇਸਸੇ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤੇ ਅਹਮਦੀਆ ਕੇ ਲੋਗ ਤਾਬੀਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਬੰਦਰ ਸੁਵਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਮਾਤੇ ਅਹਮਦੀਆ ਕੇ ਲੋग। यानी इससे इस्तेदलाल ये ताबीर कर रहे हो, इस्तेदलाल ये किया कि ये जमाते अहमदिया के लोग। मुफ्ती साहब मैं कह रहा हूं असल इबारत किथे लिखी है और किथे लिखी है? किताब में असल इबारत ये तोनु पैगामे सुलह दी बहात रहे हैं यार, असल अखबार है। पैगामे सुलह अखबार है मिर्जा साहब दी अपने हाथ दी लिखी नहीं है, क्यों तुसी फिर बार-बार भाई अखबार ते असली है कि नहीं? यहां ते इनकार कर दो ना कि जनाब अखबार दे अंदर मैं आज देना कि मुफ्ती साहब जड़े ने शाह नहीं है मोची ने इनकार ही कर दिता सी कि अखबार भी तुहाडा है। मैं कह रहा तुसी क्यों नहीं रोया दिखांदे जिथे लिखी है मिर्जा साहब ने? ओ भाई ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਮਹਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਨੀ ਹੈ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਅਖਬਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਨੀ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ। ਅਖਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਪਰਚੀ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ, ਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਟੋਟਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਹਾਵਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਅਖਬਾਰ ਨਜ਼ੂਲੁਲ ਮਸੀਹ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ ਨਜ਼ੂਲੁਲ ਮਸੀਹ, ਇਹ ਜੇ ਨਜ਼ੂਲੁਲ ਮਸੀਹ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ 18 ਸਫਾ 415 नज़ूलुल मसीह ए जे रोया। यार ब्रेक भी मारो। बिल आखिर मैं एक और रोया लिखता हूँ। पढ़ा इबारत के तुसी पढ़ोगे? लेकिन मम्मी खोलना तो दो। वो खोलो खोल। जिल्द 18 जिल्द 18 सफा 415 खलो जाओ। हाँ जी किथे टुर गए हो? खुल रही है साह लवो, तुसी तो पर्ची बना के रखी है ना। खुल रही। अच्छा जी पर्ची पर्ची नहीं पूरियां पूरियां किताबां पईयां जे, ध्यान नाल बोलिया जे। ए देखो पढ़ी भी है, ए पूरियां पूरियां किताबां पईयां जे तुहाडियां ते ध्यान नाल बोलियो जरा। पर्ची पर्ची तुसां दे अपनियां किताबां वेखियां भी नहीं कदी कि जेड़ियां मेरी लाइब्रेरी च पईयां ने। पर्ची अच्छा
ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪਰਚੀ बिल्कुल सही गल हाँ। 415 खुल गया कितों पढ़न लगे हो ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਤੇ ਨਜ਼ੂਲੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉਹਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਜ਼ੂਲੇ ਮਸੀਹ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹਵਾਲਾ ਪਰਚੀ चलो ठीक है ਪਰਚੀ की आखे बंदा है कितों लिखा ਪਰਚੀ 415 ਕਰਤੂਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ੂਲ ਮਸੀਹ ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਰਚੀ चलो पहले चीका मार लो पहले पर्ची। चीका मार लो फिर मैं पढ़ लूँ है पर्ची हाँ जी पढ़ो फिर पर्ची हूँ मुकम्मल होगी हाँ पढ़ो इतू ठीक है, पर्ची आखिर एक और रोया मैं लिखता हूँ जो ताउन की निस्बत मुझे हुई और वो ये है कि मैंने एक मुझे जानवर हुई। देखा जिसका कद हाँ जी इतने नहीं पढ़ रहा 415 सफा खोल लिया वो खोलो फिर अपन हाँ, चलो पढ़ो 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 पढ़ी जाओ पढ़ी जाइए खोलो। एक जानवर देखा जानवर देखा जिसका कद हाथी के मुंह आदमी के मुंह से मिलता था और बाज आजाद दूसरे जानवरों से मुशाबे थे और मैंने देखा कि वो यूं ही कुदरत के हाथ से पैदा हो गया है और मैं एक ऐसी जगह पर बैठा हूं जहां चारों तरफ वन है जिनमें बैल गधे घोड़े कुत्ते सुअर भेड़िए लब गया जे वगैरह सूर हर एक किस्म सुनते लो यार पढ़ जाने पर क्यों टेंशन ले रहे हो? हर एक किस्म अच्छा, ठीक है। मौजूद हैं और मेरे दिल में डाला गया है कि ये सब इंसान हैं जो बद अच्छा अमलों से इन सूरतों में हैं और फिर मैंने देखा कि वो हाथी की ज़खामत का जानवर जो मुख्तलिफ शक्लों में मजमुआ है महज कुदरत से ज़मीन में पैदा हो गया है वो मेरे पास आ बैठा और कुतुब की तरफ उसका मुंह है खामोश सूरत है आंखों में बहुत हया और बार बार चंद मिनट के बाद उन बनों में से किसी बन की तरफ दौड़ता है और जब बन में दाखिल होता है उसके दाखिल होने के साथ ही शोर क़यामत उठता है और इन जानवरों को खाना शुरू कर देता है और हड्डियों के चाबने की आवाज़ आती है तब वो फरागत करके फिर मेरे पास आ बैठता है और शायद 10 मिनट के करीब बैठा रहता है और फिर दूसरे बन की तरफ जाता है और वही सूरत पेश आती है जो पहले आई थी। एक मिनट। और फिर मेरे पास आ बैठा है। आंखें उसकी बहुत लंबी हैं और मैं उसको हर एक दफ़ा जो मेरे पास आता है खूब नज़र लगाकर देखता हूँ और वो अपने चेहरे के अंदर अंदाजे से मुझे ये बतलाता है कि मेरा इसमें क्या कसूर है। मैं मामूर हूँ और निहायत शरीफ और परहेजगार जानवर मालूम होता हूँ और कुछ अपनी तरफ से नहीं करता बल्कि वही करता हूँ जो उसको हुक्म होता है। तब मेरे दिल में डाला गया कि यही ताउन है और यही वो दाबत अल अर्द है जिसकी निस्बत कुरान शरीफ में वादा था कि आखिरी ज़माने में हम इसको निकालेंगे और वो लोगों को इसलिए काटेगा कि वो हमारे निशानों पर ईमान नहीं लाते थे। इतने किधर लिखे है कि जमात अहमदी दे लोग ने ऐ दस सकते पूरा सफा पढ़ ले नहीं और ऐ ते ख्वाब है ना ऐ रोया है ना तो दी वही ताबीर कहते- इत्थे वही लिखी है ना कहते- पैगामे सुलह दे विच सुलह दे अंदर ताबीर कितने लिखी है एक भैया बंदे ताबीर ने है ना अगर वो- इस्तेदलाल ये किया नहीं इस्तगलाल किन्ने कीता इत्थे लिखे है 415 पढ़िया 416 तुम्हारे सामने पढ़िया थोड़ा ता हुस्न ज़न रखो ए मिर्जा साहब ने ताबीर कीती है भैया देखो हजूर अखबार ने लिखने लिखा में ताबीर है देखो ना हजूर ही ताबीर कर रहे ने इस्तेदलाल हजूर दा हजूर पूरा ही कर ਅਸੀਂ रहे ने ਖੁਤਬਾ ਪੜਿਆ 415 416 भाई हजूर ही इस्तेदलाल कर रहे ने ना उदो तुसी ते मौजूद कोई नहीं सो कित्थे लिखे? वो लेकिन ओ इस्तेदलाल- अखबार लिखण वाला उस टाइम मुफ्ती मौजूद सी ते ओ कहंदा पिया कि मुफ्ती हजूर ने इस्तेदलाल कीता सी कि जमाते अहमदिया दे बंद ਉਸ ਤਗਲਾ ਸੁਣਤੇ ਲਵੋ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਤੇ 415 ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ 416 ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ हां ਇੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਇਸਤਗਲਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ओ भाई इत्थे कीता है ना इस्तेदलाल क्या है इस्तेदलाल ठीक नहीं ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੁਣਤੇ ਲਵੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ भाई अभी आपने फरमाया है ना कि जो रोया होता है वो ताबीर तलब होता है फरमाया है ना आपने ताबीर तवल हाँ ताबीर तो मिर्जा साहब आप ने मुझे की थी, वो बताएं सानू ये खा दे। नजूलुन मसीह की ताबीर ये जो ख्वाब है ये रोया इसकी ताबीर क्या है कहाँ पे लिखी हुई?
हुई है। हाँ ताबीर, मैं को ख्वाब दी ताबीर करना नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी मैं ताबीर मनो क्या है करनी बताया, आंदी। आप ही बता दें क्या ताबीर है। जनाब उत्थे मिर्जा साहब ने ओदी ताबीर कीती नहीं ते मैं मामूर बिन अल्लाह जी ओदी ताबीर जब कर कीती सकती नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਗਾਮੇ ਸੁਲਹ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। मिर्जा साहब देखो मैंने मुफ्ती साहब मैंने पहले आया दसो पैगाम सुलह मिर्जा साहब ने आप लिखे अखबार दा ਉਹ ਭਾਈ ਪੈਗਾਮੇ ਸੁਲਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਗਾਮੇ ਸੁਲਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। मिर्जा साहब ने मिर्जा ਇਹ ਤੇ साहब ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। बंदे ने ਇਹ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਪੈਗਾਮੇ ਸੁਲਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। मैं कह रहा मैं एक गल दस दो जी गल इतने पैगाम सुलह के अंदर लिखी है वो गल उत्थे निकली है रूहानी खजान जिल्द नंबर 18 सफा नंबर 415 के अंदर या नहीं निकली? उत्थे एक रोया यार ਇਹ ਇਸਤਦਲਾਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। मिर्जा ਇਹ ਇਸਤਦਲਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਇਸਤਦਲਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੌਣ ਕਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਲਿਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਲਿਖਾ है कि मैंने देखा कि मैं एक जंगल में हूँ। हाँ जी। और मेरे इर्द गिर्द बहुत परिंदे, बंदर और सुअर वगैरह और इससे इस्तदलाल ये किया। और इस्तदलाल कौन कर रहा है? हजूर कर रहे हैं। किन्ने कीता है? हजूर ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मैं कह रहा मिर्जा साहब 415 416 खोले होते थे हजूर। ओ भाई ये हजूर कौन है? ये हजूर कौन है? ये हजूर कौन है? हां ए पता हजूर पता चलेगा। करो ना हजूर कौन है? हाँ ठीक हो गया लेकिन ऐसे भाई ये हजूर कौन है? दसो ना तुसी हजूर कौन है? रूहानी खजाल जिल्द 18 सफा ए हजूर दसो मेरे कौन है? हजूर कौन है? हाँ उत्थे नहीं लिखना हजूर कौन है, इज्जत ऐसे भाई दसो तुसी दसो हजूर कौन है? किन्ने तस्दीक कीती है? अच्छा मिर्जा साहब लिखे होते हजूर कोई होर भी है जे ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? जनाब ਹੁਣ खलीफा खामिस ने अहमदी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? खलीफा खामिस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਥਾਮਸ ਇਥੋਂ ਮੁਰਾਦ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇhtਰਾਮ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਯਾਰ ख्वाब मिर्जे कादियानी ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਲਿਖਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਯਾਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਲਿਖਾ ਨਜ਼ੂਲੁਲ ਮਸੀਹ में ਖਲੀਫਾ ਥਾਮਸ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਕ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਜ਼ੂਲ ਮਸੀਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ। ਨਜ਼ੂਲੁਲ ਮਸੀਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਜ਼ੂਲੁਲ ਮਸੀਹ ਕਿਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? 415 416 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ओ यार कमाल करते हो पे, आंखों के अंदर धूल झोंक रहे हैं आप, कमाल कर रहे हैं आप। सबको आप बेवकूफ समझ रहे हैं। चलो मुफ्ती साहब सीधा सीधा मिर्जा कादियानी है। नहीं किथे लिखे है केड़ी लुगत दी किताब च लिखे कि जिथे हजूर है कि मुराद मिर्जा कादियानी? ओ यार है देखो भाई, तब आपने नज़ुलुल मसीह में से हजरत मिर्जा साहब का वो रोया पढ़ा जिसमें हजूर ने लिखा है। हजूर तो कुरान कौन है? मिर्जा साहब। ठीक हो गया। अगे जेड़ा इबारत लिखी है भाई हजूर तो मुराद पहले ते मन ना, हजूर तो मुराद मिर्जा साहब है वे के नहीं? हाँ उधर दिया कटी जा। आप खोल के पढ़े 415 416 ते गल। यार हजूर तो मुराद कौन है? चल छड्डो नहीं छड्डो छड्डो। हजूर तो मुराद कौन है? हजूर तो मुराद खलीफा खामिस भी लैंदी जमात अहमदिया। वेख लो फिर वेख लो ए जे कादियानी दी करतूत सारी दुनिया चेक करो कि सामने एक चीज लिखी है और मुरब्बी जड़ा वे अखां च धूल झोंक रहे हैं, धूल झोंक रहे हैं। एक अखबार दी पर्ची चुक के मतलब है मुराद हजूर मिर्जे कादियानी नु मनन तो इनकार कर दिता। उन्हें कहा नहीं हजूर तो मुराद पता नहीं कौन है। किसी नु भी कह सकते हैं मुजमल लफ्ज है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ कह सकते हैं ऐसे जगह पे हजूर तो मुराद मिर्जा कादियानी है, और कोई नहीं है। ठीक हो गया। अगे तो ओदे इबारत दे उत्ते तावील किने की है? इस्तेलाल किने लेता है? जो एक करी तो दसना है मेनू लिखिया ही नहीं इबारत दे अंदर कि इथे हजूर तो मुराद कौन है। इथे दसना पेगा, दसना पे तो उत्थे हजूर दा नाम नहीं लिखा ना, मुजमल गल है। ओ यार लिखिया ते है यो मिर्जा साहब, कोई और भी मिर्जा साहब है नहीं। भौंक लिया मैं कह मिर्जा साहब तो मुराद कोई और है। रोया मिर्जा साहब दा सी कि किसी और दा सी? रोया मिर्जा साहब दा हुन पढ़ी है ए वाली ए रूहानी खजान जिल्द 18 सफा 415 नज़ुलुल मसीह ए रोया किसी और हजूर दा दसो। इस्तदलाल किथे लिखे इस रोया दे थे कट के विखा दो मुफ्ती साहब। ओए लिखे है ना हजूर नहीं इस्तदलाल है ना यार। मोची कट के विखा दे सफा 415 416 ना हो गया, मैं ना हो गया। इससे इस्तदलाल ये किया कि ये जमाते अहमदिया के लोग हैं। इस्तदलाल किसने कीता है? किसने कीता है? हजूर ने कीता है। हजूर ने कीता है। 415 416 दे होते। ओए
ਇਹ ਸਾਰਾ ਯਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। मैं कह रहा यार, सफा की कर रहे हो 415 पे? 416 ते किथे वे इस्तदलाल अखबार दे अंदर केड़ा कोई इस्तदलाल? मिसप्रिंटिंग हो सकती है। मैं कहना ओ मुफ्ती भाई शाह नहीं है, मिस मोची प्रिंटिंग है। मान लोगे। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਲੋ ਜੀ ਮਿਸ ਪ੍ਰਿੰਟ। मैं कह रहा FIR ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਚੀ एक मिनट दोबारा ऐलान करो कि ये मिस प्रिंट है। ओ यार छोड़ दे, मैं कह रहा ऐलान करो कि ये मिस मेरे प्रिंट मेरे का मैं कह रहा हूँ तो गलत इबारत लिखी ऐलान करें 415 आप कि ये 416 तो मिस गल ही प्रिंट नहीं है। है। और किस तरह नहीं ऐलान नहीं करा कि आप मोची का ऐलान पेओ करें कोई कि नहीं। ये मिस प्रिंट है। वो कह रहे हैं कि गलत गल लिखी है 415 416 पूरा नहीं नहीं एक आप सफा ऐलान फिर भी कर दे चिक्का कि मारी ये जा मिस रहे हैं। प्रिंटिंग है। ये पैगामे सुलह में जो लिखा है ये मिस प्रिंट है। आप ऐलान करें। हजरात एक जरूरी ऐलान सुने। सफा नंबर 415 रूहानी ग़ज़ाइल जिन 18 के अंदर जो रोया अखबार में लिखी हुई है उसका इस्तदलाल हमें नहीं मिला। ठीक है, क्यों नहीं मिला? सामने खुशी मौजूद है। मोची अबे लो और जी। पर्ची खोली है, खोल। हाँ सफा 415 खोल अच्छा है। है पर्ची ये जिल 18 दा यार दस देना है, इनकार कर दे कि पैगामे सुलह ਤੁਹਾਡਾ नहीं है। और मैं हाँ, इनकार कर दे फिर। ऐलान की कीता कि मुफ्ती दे प्यो लबन लगियां। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਐਲਾਨ ਆਦਮੀ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਐਲਾਨ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਐਲਾਨ। ऐलान दे दौरान विच भौंकी जाएंगे तो किस तरह मैं गल करा। ਚਲੋ हजरात ਜੀ एक ਲੋ ਜੀ जरूरी ਮੈਂ ऐलान ਹੁਣ सुने। ਭੌਂਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੌਂਕੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। हजरात एक जरूरी ऐलान सुने। जो पर्ची मुफ्ती ने पेश की उसकी हमने तस्दीक की है कि रूहानी ग़ज़ाइल जिल्द 18 सफ़ा नंबर 415 पे मिर्जा साहब ने कोई इस्तदलाल नहीं लिया। हवाला लिखने वाले ने हो सकता है मुमकिन गलती की, उसका मिर्जा साहब के साथ मंसूब करना कतन गलत है। ठीक है, और कोई ऐलान रह गया? ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮੇ ਸੁਲਹ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਆਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਪੈਗਾਮੇ ਸੁਲਹ ਦਾ ਇਸ ਇਬਾਰਤ ਤੋਂ चलो ठीक है हजरात, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ नहीं की। पैगाम सुलह के अंदर मिर्जा साहब के, हाँ जी, पैगाम सुलह अखबार में जो पर्ची मुफ्ती मुबशर और मोची ने पेश की, रूहानी ग़ज़ाइल जिन 18 सफ़ा नंबर 415 पे उस रोया का इस्तदलाल नहीं लिखा हुआ। ये गलत हवाला है। और खुश है मोची? अच्छा ये हवाला गलत है, ठीक हो गया जी, सब ने सुन लिया भाई। हवाला गलत है, वो साबित हो गया। रूहानी ग़ज़ाइल जिन 18 सफ़ा 415 तो जो ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ अगली दफा ਅਸਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਿਆ ਜੇ ਭਾਈ। खुली हो वेबसाइट अज ਮੈਂ खुली ਕਰਨ हो सही ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਨਾ खोल खोल ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ इस्तदलाल खाई जरा पेश करन लगे ना कि इस्तदलाल जमात ਸਾਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਰੱਬੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ओ मैं मुरब्बी नहीं लानती हूं, क्यों मुरब्बी मेरे नाम है 7 साल तक भैया बात करें। ਓਏ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਾਕ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ। ਸੁਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਰੱਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਏ? 313 साहब मुफ्ती आप ना एक काम कर लें, शाह साहब जितनी देर वेबसाइट हाँ खोल जी। रहे हैं अपनी घर की ओए तरबियत मोची के है बारे में शाह बात करें। बनाया जे FIR अच्छा भाई, आपके घर की तरबियत हमने अच्छे से देखी है। जुतियां मार मार के इनु पिछले मनवाया 15 कि मिनट मोची से उन्होंने एक भी पर्सनल अटैक का आपको मुड़ के जवाब नहीं दिया। शर्म आती है आपको? ओ जदों थोड़ी बहुत मुरब्बी गैरत है। मरज़ई कह रहे हैं, इस तो वड्डी मेरे से गाल ही नहीं है। गाली तो कोई नहीं दी क्यों उन्होंने, बोल रहे आप थे? आके मिर्जा साहब को डिफेंड कर रहे हैं तो क्या कहेंगे वो आपको? नहीं तो अच्छा, अगर कोई भी बोले भाई आप जो आप हवाला दे रहे हैं उधर वो बात ही नहीं लिखी हुई, उधर क्या करेंगे हम? यार तो बात करें ना, आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं, इतनी देर से हम लोग देख रहे हैं, सारे लोग भी नीचे आप पे नाम पे भेज रहे जब हैं। मैं अभी ऊपर माइक आप पे नहीं आऊंगा, अगर बोलते समझदार भाई ये इंसान कादियानी है तो मुरब्बी आ प्लीज गया। ये ना मैं करें ना हरकतें कादियानी हूं ना मुरब्बी हूं, ठीक है ना, मैं तो कादियानी ये बात आप उनके सामने रखेंगे, आप जातियात पे क्यों उतरे हुए? कब से गालियां दे रहे हैं आप? उन्होंने कुछ कहा है आपको आगे से? अच्छे तरीके नाल कह लो, हो सकता मोची दे ज़हन दे अंदर आ जाए ਜਦੋਂ मैं नहीं कहा। यार फिर वही आप अपनी घरेलू तरबियत भाई आपसे कहा ना दिखाएं। हबीब साहब ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਿਓ, ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਹਬੀਬ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜ਼ਰਾ। मोची ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਢੂੰढ ले, मोची ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਿਓ। मिर्जे कादियानी को हम ऐसा खोलेंगे तुझे पता चल जाएगा। तमीज के साथ बात जमात करो, 212 तमीज के साथ बात कर रहे हैं। मका मारो खाली बैठ के होते नहीं वो ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਗਾਣਾ ਜੋਗੇ ਹੋ। तमीजी तो नहीं हो रही ना, तमीज के साथ बात कर रहे हैं। ਉਹ ਘੰਟੇ ਦਾ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੌਂਕਣ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦਾ ਕਾਬਰੀ ਨੂੰ तू ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ और वो काबरीन है और मिर्जा कादियानी हेलो जी, लानती बरेलवियत खट्टी बाहर से मरने वाला काबरीन है। बरेलवियत बाहर आ गई जे, गाना कड्डो और कड्डो। बरेलवियत बाहर आ गई है। पहले लानत पाने उस खंजीर दे उत्ते ਅਸੀਂ ਮਖਾਓ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਰੇਲਵੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕਾਬਰੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਬਰੀਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਅਸਲ ਸਾਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦਈਏ। ਮੋਚੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਚਿੱਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪੂਰਾ ਅਖਬਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕੱਢ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਅਖਬਾਰ ਇਹ ਲੋ
ए लो जी फिर पैगाम सुलह कर दिया। पैगामे वो सुलह- लानती आदमी कह रहे रूहानी खजाइल खोल। पैगामे सुलह 7 अप्रैल पैगामे 1934 का अखबार शुमारा, ठीक है असली जी। वाला खोल के देख और ले। असली क्यों झूठ बिल्कुल मारना? असली गलत हो या सफा नंबर 15 पैगामे सुलह ने मैं रूहानी ये खजाइल सफा कह रहे 15 रूहानी से खजाइल जाना है, 18 सफा सफा नंबर 415 कट के वखा 4 5 खोले किथे हैं मनु तो वेबसाइट पे नाम ही नहीं नजर आ रहे किथे खोली 7 पीछे जा मोची 8 ए मोची 9 मैं 10 गिनती करना से आख्या मोची 11 ओ मोची 12 कितों साइड खोली 13 14 मेला ते ए, वो ज़हनी मरीज। ए लो ए अखबार आ गया अच्छा एडा अबे को लानती आदमी अबे लो, जमात ने अबे अपनी लो। निशानी ला के रखी फड़या गया मुरब्बी, कितना फड़या बगैर गया। ते मोची तू ओ मुरब्बिया फड़या गया तू ओ चोर तेन शर्म मुरब्बी नहीं फड़या आती गया तू ओए ए ਉਹਨੇ मुरब्बिया। जमात ने उथे ओए मुरब्बी फड़या गया भाई क्यों चोर लानती वाला मुरब्बी। काम करना है ओ मुरब्बी क्यों ने झूठ कार ही मारना करता ते मुरब्बी फड़या है गया भाई झूठा इंसान ए वे लो मिर्जा कादियानी ने ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ जमात ने उथे रंग ला के रखे ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ खोल- ਗੱਲ खोल- ਕਹੀ ਸੀ खोल- ਅੱਜ ਜੋ खोल- ਤੇਰੇ खोल ਉੱਤੇ उसे ਸੱਚੀ website ਸਾਬਤ तो ਹੁੰਦੀ तू क्या मैं ਹੈ website ਕੱਲ तो ਤੱਕ खोल ਜੋ ਮਿਰਜ਼ੇ तेरे तो ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ वरना ਉੱਤੇ मैं ਸੱਚੀ कहना ਸਾਬਤ बाउंड ਹੁੰਦੀ कोई ਸੀ ਭਾਈ पूरे मिर्जा कादियानी पे नहीं कहना होना। ਸੀ झूठ के मुर्दार को किसी तरह ना छोड़ना बहुत ये कुत्तों लानती का आदमी तरीका है है तू, ना वाकई तो इंसानों का झूठ बोलने से बदतर तो दुनिया लानती है में और कोई बुरा काम नहीं प्यो ने म्यूट नहीं झूठ करना बोलना मुर्तद होने से कम नहीं प्यो नु वो म्यूट नहीं कंजर लाना जो वलदुज़्ज़ना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं वो कंजर जो वलदुज़्ज़ना वो लानती आदमी है। कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं वो कंजर जो वलदुज़्ज़ना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं झूठ बोलना और गू खाना एक बराबर है हाँ मुरब्बी दौड़ गया जे ना ए चोरी फड़ी गई तू दौड़ गए और मुरब्बिया इधर आए तू ओए। मुरब्बी दौड़ गया हाँ चोरी फड़ी गई है ना अस्सलाम वालेकुम हाँ वालेकुम सलाम ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ ਪੈਗਾਮੇ ਸੁਲਾ ਜਦ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਜੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਏ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਨਸਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ हाँ नहीं नहीं मुरब्बी ये अंजी चोरी जो फड़ी जानी अंजी करते ने छपियां मारते ने छपियां मारते ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਲੇ ਘਰ ਦੀ ਨਾ कंजरों का ਮਹਾਨ ਤੋਂ काम ਰਹਿੰਦਾ है ਨਹੀਂ कंजरों का वलदुज़्ज़ना का जानी लोगों का और जानी जना की पैदावार का काम है हैं? पहले यह काम मिर्जा कादियानी करता सी हुण तुसी मुरब्बियों करना शुरू कर दिता है ते अग्गों आंदा मैं मुरब्बियो ही नहीं ਤੇ ਮੁਰੱਬੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਦਰ ਸੂਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਲਦੁਜ਼ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਰੱਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਮੁਰੱਬੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਮੁਰੱਬੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਮੁਰੱਬੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਜ਼ਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੁਰੱਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰ ਛੜਿਆ ਜੇ ਇਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਮੇਰੀ ਛੜਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਹੁਣ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਜੀ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸਾਹਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਗਨਲ ਡਰਾਪ ਹੋ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਿਆਲਾਂ ਬੜੇ ਕਾਲਰ ਆਏ ਜੇ ਭਾਈ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਲਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ? ਨੱਪ ਦਿਓ ਹੁਣ ਜੀ ਜੀ सिर्फ आवाज एक है। रिक्वेस्ट है सिर्फ एक छोटी रिक्वेस्ट है ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਬੀਬ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੋ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਣ ਮੈਂ ਕਾਲਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਤ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵਾਬੀ ਸੁੰਨੀ ਦਿਓਬੰਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਆਲ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਟ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਵੇ ਬਸ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ हाँ, परदेसी परदेसी साहब साहब आए आए ने जनाब जी परदेसी साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मुफ्ती मुबश्शिर साहब कैसे हैं आप ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाइए अल्लाह का शुक्र है जी अच्छा मैं एक बात कहना चाहता था आप साहिब इल्म है सब कुछ है और बहुत तजुर्बा रखते हैं आप ना इधर तबलीग करते हैं ना इस्लाम की मेरा कहने का मतलब था कि आपको कोई बुरा भला कहे ना तो आप अपने लहजे में फिर भी शाइस्तगी रखें आपको देखे ना लोग सीखते हैं चीज़ें ठीक है मुश्किल है बर्दाश्त करना पर क्या पता इधर कुछ गैर मज़हब भी आते हैं वो लोग ना जो मुतासिर होते हैं बाद में ना आपकी बात से और इस्लाम की तरफ आ जाएं फॉर एग्जांपल तो जो कि ईसाई भी आ सकता है कोई गैर मज़हब भी हो सकता है तो डिबेट से इल्मी डिबेट से बहुत कुछ हासिल हो जाएगा पर कई बात ना टॉपिक से हटके ना चीज़ें बड़ी ना गलत अल्फाज
कोई भी है, वो चाहे वो शिया सुन्नी और ये जो आए हुए हैं क्या नाम है अहमदी आते हैं या कुछ भी, मेरी एक सजेशन है कि इल्मी बात की तरफ अगर ज़्यादा नुक्ते पे रहे ना तो हम लोगों को भी ना सीखने को मिलता है और क्लियर होती हैं बातें। अक्सर टॉपिक से हट के ना गलत बात, जैसा ये भी भाई ने बोला कि अगर कोई गालियां देने लगेगा मुझे, अब म्यूट ना करना, मैं भी लगड़ दगड़ कर देंगा। उससे ये है कि फिर जब नए बंदे ब्रॉड पे आते हैं देखने, वो कहते हैं यार इधर क्या चल रहा है, ये मतलब गालियां गलोच हो रही है और एक दूसरे को गालियां दी जा रही हैं, बजाय इल्मी तरीके से एक दूसरे को अगर फंसा लिया जाए या अपनी बात को ठीक रखा जाए। तो मेरा ख्याल है आपके मर्तबे के मुताबिक बात करूँ ना कि अगर आप इल्मी लिहाज से सिर्फ बात करेंगे, वो मेरा ख्याल है ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। कोई गलत बात करता है तो उसको निकाल दें, अगर नहीं बात आता है गालम गलोच करता है उसको उतार ही दें। जो अच्छी डिबेट करने वाले लोग हैं उनको आगे आने दें, बस दूसरे को आप निकाल दिया करें, ब्लॉक कर दिया करें। बात कर लिया आपने? अच्छा ठीक है, कर लिए। अच्छा, गुजारिश ये है कि परदेसी भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप कॉल पे तशरीफ लाए और आपने बड़े प्यार मोहब्बत का इजहार फरमाया है। सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने आज की पूरी बराड़ के अंदर कोई गाली सुनी है मेरे मुंह से? और एक तो गाली का बताइएगा, लाजमी बताइएगा, मुझे भी इस्लाह की जरूरत है, मैं इस्लाह चाहता हूं अपनी भी। दूसरा आपने ये बताना है कि कोई बगैर हवाले के या बगैर दलील के मैंने कोई बात की हो, वो लाजमी बताइएगा। हाँ, जो लिखा हुआ है वो तो मैं मजबूर हूं ना, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो मजबूर हूं, हवाले के तौर पे वो पढ़ना ही पढ़ना है मैंने। तो ये आप लाजमी बताइएगा। जी परदेसी भाई, कोई आपने ऐसी कोई चीज सुनी मुझसे? नहीं, मैं कतई तौर पे नहीं कह रहा कि आपने गाली दी है, मैं बाय द वे बात कर रहा हूँ कि देखें, वो आप अच्छे से बात करेंगे ना लोग और मुतासर होंगे, ठीक है। जाहिर बात है कि दोनों तरफ से कभी कभी ना मैंने ये नोट किया, मैं अक्सर दूसरी प्रोग्राम में भी जाता हूँ, सुनता है तो इल्म हासिल होता है ना, मैं मिलता है, मतलब अच्छी बातें मिलती हैं डिबेट्स में ना। मुझे माजरत, बात आपकी काटनी पड़ रही है, मैं इसकी माजरत चाहता हूँ। मेरे मुंह से कोई आपने गलत बात सुनी है? परदेसी भाई? जी 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 सर, नहीं मैं वैसे बाय द वे बात कर रहा था कि अभी ना पीछे से भाई भी बोल रहे हैं कि यार जो बात की थी, आपकी पूरी बात ये बता रही थी कि अभी इस बराड़ के ऊपर मुफ्ती मुबशर शाह कोई गालियां निकाल रहा था, बदकलामियां कर रहा था, और ये आपका नतीजा ये निकला है गुफ्तगू। नहीं, आपको नहीं कह रहा मैं कतई तौर पे ना, नहीं, आपको बात कारी जब मैं रहा हूँ, बात तो और कोई कारी नहीं रहा, मैं ही कर रहा था, एक कादियानी मुरब्बी से कर रहा था। जी मैं समझ गया, इवन के वो गलत तरीके से या गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। मैं ओवरऑल जस्ट बाय द वे बात कर रहा हूं। कोई ज्यादती की, मुझे अपनी क्लैरिफिकेशन जरा थोड़ी सी। नहीं आपने नहीं की। तो आपने जो फरमाया कि अपना कूल रखा करे, नहीं वो मेरा कहने वाला है कि बना लोग जज्बात में लेके आते हैं ना, उभारने की कोशिश करते हैं ना, गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। भी मैंने कोई ऐसी बात की हो, कोई बताए थोड़ा सा। नहीं की आपने, नहीं की। ठीक, बड़ी मेहरबानी। कोई सवाल है आपका? नहीं मेरा कोई सवाल नहीं, मैं सिर्फ यही कहना चाहता, दूसरे भाई भी जो बैठे हैं ना वो कहते हैं कि यार अगर अब कोई आया तो मैं, हम नहीं करते। हाँ वो ना मजा फिर ना आप शायद किसी और बराड़ की बात कर रहे हैं, मेरी बराड़ पर जहां पर मैं होता हूं ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत अच्छी बात है, बस ये गालम गलोच का सिलसिला कहीं ना अच्छा लगता है किसी को भी ना, हो नहीं सकता। आप साबित नहीं कर सकते कि मेरी मौजूदगी के अंदर कोई गाली निकाले। वो हाँ, अगर ऐसे निकाल देता है तो फिर मैं उसको रोकता हूँ कि ना यार, जी बिल्कुल अच्छी बात है। अक्सर ये अपने मुसलमान को कादियानियों को हमने कभी नहीं रोका। कादियानियों का तो काम ही है गालियां निकाल, उनको नहीं हम रोकते। करेगा तो वो अपने अमल का खुद ही वो जवाब देगा। कादियानियों को नहीं हम रोकते, वो जितनी मर्जी गालियां निकालें, जो मर्जी करें, मुझे जो मर्जी कहें, इल्जाम लगाएं, बुहतान लगाएं, जो मर्जी करें, मैंने कभी नहीं रोका। बस यही मेरा मतलब था, आपने जवाब अपने इल्म से देना है उनको, और इल्म से फंसाएं, इल्म की डिबेट से बात करेंगे। अच्छा परदेसी भाई, नीचे कॉलर बड़े हैं जी, जरूर आप नीचे बैठ के ना डबल टैप करिएगा और आते जाते रहा करें, आते जाते रहा, जरूर मुझे फॉलो भी कर ले। जी अबीब साहब, नाम पहले बता के
कॉलर को उठाया करें। हबीब साहब मौजूद हैं कि चले गए? खान साहब है कोई? जी खान साहब? हाँ, खान साहब को आने दें। जी खान जी साहब। आ गए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुफ्ती सलाम। मुफ्ती साहब एक सवाल है मेरा। कादियानियों में कितने फिरके हैं? ये बड़ा अहम सवाल है खान साहब। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम राजा फरीद है। राजा अफरीज साहब। राजा साहब पहली दफा आए हैं मेरी बरात में? नहीं पहले भी 2 दफा आया हूँ मैं। अच्छा, फॉलो किया हुआ है मुझे आपने? जी बिल्कुल किया हुआ है। हाँ, आया करें यार, जब मैं बराड़ करूं तो आया करें। जी जब टाइम होता है हाजिर हो जाते हैं। अच्छा, ये है कि कादियानियों के फिरके, कादियानियों के बहुत से फिरके हैं, ठीक है? कादियानियों के बहुत से फिरके हैं। मैं आपको ये फोल्डर निकाल लूं तो फिर आपको बताता हूँ। मेहरबानी होगी। अभी तक जो कादियानियों के फिरके बन चुके हैं वो कौन कौन से हैं? फिरके हाँ, साहिल भाई कापना लगाइएगा, बैग ना जाइएगा भाई। फिरके किधर गया? अच्छा जी, यार ਇੱਥੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ रिकॉर्डिंग किधर? अच्छा चले, मुझे जो जुबानी याद है मैं बता देता हूँ। जी इनके जी बता तकरीबन दें। कोई राउंड बोर्ड को 17 के करीब फिरके बन गए, ठीक है जी। इनमें बड़े अच्छा। बड़े 2 फिरके हैं। एक जब हकीम नूरुद्दीन पहला खलीफा जब मरा था ना, तो उसके बाद मोहम्मद अली लोरी जो था कादियानी, वो चाह रहा था कि मैं इस कादियानी फिरके का लीडर बनूं। तो जो नुसरत जहां बेगम तो वो अपने बेटे को बशीरुद्दीन महमूद को बनाना चाह रही थी कि नहीं, इसको लीडर बनाओ। वहां पे इख्तलाफ हो गया था और इनके 2 फिरके अलग अलग हुए थे। एक लोरी फिरका जिसको लीड कर रहा था मोहम्मद अली लोरी, और एक बशीरुद्दीन महमूद का फिरका। समझ रहे कि नहीं? ये जो मौजूदा खलीफा है ना मिर्जा मसरूर, ये उसी फिरके का है। समझ आए कि नहीं? लोरी लोरी नहीं, बशीरुद्दीन महमूद। बशीरुद्दीन महमूद दूसरा खलीफा, तीसरा खलीफा मिर्जा नासर, चौथा खलीफा मिर्जा ताहर, 5वां खलीफा मिर्जा मसरूर। ठीक है जी खान साहब, जी समझ आई है? जी जी तो ये 2 फिरके तो समझ आ गए ना आपको? जी ठीक है जी। जी। इसके बाद एक फिरका इनका बना जो मौजूदा बंदा जिंदा है, अब्दुल गफ्फार जंबा। उसने एक फिरका बनाया कादियानियों का, जंबा ग्रुप, और उसके कुछ नुमाइंदे 2-4 टिकटॉक के ऊपर भी मौजूद है, जिसमें तारक चौहान है, अकबर है कादियानी, और इस तरीके से वो है ये 3-4 बंदे इधर टिकटॉक के ऊपर भी उनके उस फिरके के मौजूद है। एक फिरका को लीड अब्दुल गफ्फार जंबा कर रहे। एक मिर्जा कादियानी का पोता रफीउद्दीन था, उसने भी एक फिरका अलग बनाया था। ठीक है जी। उस फिरके के यहाँ फोल्डर रखा था, पता नहीं अभी नजर नहीं मेरी पड़ रही, तो बहरहाल जुबानी कलामी वो सारी तफसीलात मेरे पास मौजूद। एक फिरका उसने बनाया था और बहुत बड़ा फिरका वो भी चल। फिर जनाब अजीम दैमन नाम का एक कादियानी था, उसने फिरका बनाया। इस तरीके से एक ताहिर नसीम था,
उसने फिरका बनाया था जो कि मारा गया है, और उसका फिरका। एक नासर सुल्तानी जो अभी जेल के अंदर है, इसने फिरका बनाया था। नासर सुल्तानी और ताहिर नसीम और अब्दुल गफार जंबा, ये 3 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने खुद भी नबूवत का दावा किया हुआ है। ये खुद भी कहते हैं कि हम नबी हैं। हाँ, ये खुद भी कहते हैं कि हम नबी हैं। तो ये मोटे मोटे कुछ मुझे फिरके याद हैं और उनके बंदों का नाम याद है। ताजा वाले 2 भी डालने, एक वो MSR चीमा है, उसने भी नबूवत का किया हुआ है, वो भी कहता है लहाम शाम। अब वो तो आजकल के तकरीबन कादियानी वो नबूवत का दावा करते हैं, हर एक की और एक नबी और बना। भी हाँ, ये एक औरत लगाई है मैंने, वो मंत्री यहाँ पे आई है जो कहती है कि मैं नबी। ये तस्वीर लगाई है मैंने फिर तो। हाँ, ये तस्वीर लगाई है। ये तस्वीर मेरी ही बनी हुई है, ये पोस्ट। तो इसके अंदर वो पूरी डिटेल मैंने बताई है। ये बिल्कुल ठीक है। तो ये खान साहब देख रहे हैं आप? खान साहब जी जी, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा। तस्वीर के अंदर तो इतना कुछ नजर नहीं आ रहा क्योंकि बहुत बारीक लिखाई है, लेकिन बहरहाल अगर मजीद कुछ चाहिए होगा खान साहब, आप मेरे व्हाट्सएप पे राब्ता करिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास? सर काफी दिनों से इंतजार कर रहा हूँ। ओ बाबा जी, मेरी इसी आईडी के बायो के अंदर, बायो का पता है कि नहीं? जी जी बिल्कुल, मैंने किया था मैसेज, मेरे ख्याल आपको फोल्डर कहा था कि शायद आप बिजी थे, कि फोल्डर पे कुछ इंफॉर्मेशन वो जो है ना PDF पे आप भेजेंगे, तो वो अभी तक वो मेरे ख्याल मिली नहीं मुझे। नहीं, ऐसे हवाले नहीं मैं भेजता। ओहो, फिर आपने कोई मैसेज ऐसा किया होगा जिसकी तरफ मैंने तवज्जो नहीं की। ऐसे नहीं। मुझे अक्सर मैसेज आते हैं, हजारों की तादाद में व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, जिनमें अक्सरियत ये होती है शाहजी कादियानियों के खिलाफ कुछ हवाले सेंड कर दे। अब ये कोई बात बंदे को देख के गुस्सा चढ़ जाता है कि कादियानियों के खिलाफ कुछ हवाले सेंड कर। मतलब लाखों की तादाद में हवाले मेरे पास मौजूद है, मुख्तलिफ मौजूआत है, और उनकी तरतीबात मेरी जाती लगाई हुई हैं। वो मुझे पता है कि मुनाजरे के अंदर किस तरतीब से मैंने कौन सा हवाला देना है, और मैं कैसे हवाले सेंड कर दूं भाई, तुम्हें क्या समझ आएगी? तो ये है कि आप जैसे मैसेज करिएगा कि वो फिरकों वाले पोस्ट सेंड करें, फिर मैं आपको वो सारी डिटेल सेंड करूं। समझ आई कि नहीं कुछ? जी जी बिल्कुल, आ गई, बड़ी एक मेहरबानी। तरीकाकार मैंने आपको बताया ना। नहीं, हमेशा ही आपने बड़ी शफकत से और बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं, बड़े मशकूर है आपके हम। बड़ी मेहरबानी। तो ये है कि मतलब हवाले जो मुझसे तलब करते हैं वो आपको मेरे हवालों का फायदा कख नहीं होना, क्योंकि मैंने एक इबारत को हाईलाइट किया है, वो अपने मकसद के लिए किया है। मुझे पता है मैंने वो इबारत पढ़ के क्या नतीजा निकालना है या क्यों किया है हाईलाइट, वो तो मुझे पता है। तो ये है कि मुझसे हवाले ना तलब किया करें कोई दोस्त भी, वो आपको समझ ही नहीं आनी। मेरे हवालों की ये समझ आपको कख कंडा नहीं आनी। हाँ, उन हवालों की जरूर समझ आएगी आपको कि जो मिसाल है, फर्ज कर लें कि मैंने एक किताब लिखी है, अपनी हर किताब के अंदर मैं एक कादियानी किताबों के असल स्कैन ये देखें लगाता हूँ, असल स्कैन। तो वो अब मैंने स्कैन लगाया है तो उसको मैंने किताब के अंदर समझाया भी है, समझे कि? अब देखे ना, ये एक हवाला मेरे सामने है, ये अल फजल अखबार है, उसका एक 1937 14 दिसंबर 1937 का शुमारा है, सफा नंबर 4। ये देखिए लिखा हुआ है मसीह मऊद के 99 अस्माउल हुस्ना। अब ये हवाला दे के ना मैंने समझाई ये बात कि जैसे अल्लाह पाक के 99 नाम है, जैसे नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम है, तो कादियानियों ने भी मिर्जे के 99 नाम बनाए हुए हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो कहने का मकसद ये मैं हवाला अगर सेंड कर दूं, अगले बंदे को नहीं समझ आनी कि मुफ्ती बशर ने ये क्यों ये चीज भेजी है, क्या है,
इससे क्या साबित करना चाहता है, समझ आई कि नहीं? मैं एक बात एग्जाम्पल समझा रहा हूं। तो खान साहब और कुछ? बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी शुक्रिया, बहुत मेरी ये इंशाल्लाह किताब दोबारा। कादियानी कलमा पढ़ी है आपने? ए नहीं वे लो खान साहब, फिर तुसी ना फिर लड़ाइयां वालियां गल्लां करदे हो। सर, मुझे आपको टिक टॉक पे आज मेरे ख्याल है कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ आपको, तो मेरे ख्याल है आपका नेट काम के ऊपर बहुत मौजूद है, सर्च करिएगा, या व्हाट्सएप पर ही मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि अपनी किताब की पीडीएफ मुझे ये कादियानी कलमा की सेंड करें, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है समझ आई? इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह। पढ़ेंगे तो देखिए, मुताला करेंगे तो कुछ मिलेगा ना यार। ये जी स्क्रीन थोड़ी सीधी ना करें, स्क्रीन पुठी हो गई है। मिरर योर वीडियो, ये देखें। खान साहब नजर आ रहा है? खान साहब जी पढ़िएगा इधर। हाँ, जो हाईलाइट किया हुआ है, हाँ हाँ, हाईलाइट। हजरत मसीह आगे, वो मेरे आगे वो नजर नहीं आ रहा मुझे हजरत। हजरत मसीह मुतरला शलवार के 99 अस्माउल हुस्ना। अच्छा, मसीह मूतर हम इसको इस वजह से कहते हैं कि मिर्जा कादियानी दिन और रात में 100 दफा टट्टी मूतर किया करता था। ये मसीह टट्टी मूतर है, ठीक है, इसलिए हम इसको मसीह मूतर कहते हैं। समझ आइए कि कुछ? जी जी, हाँ, आप लोगों ने भी यही कहना है, मिर्जे कादियानी का नाम जब भी लें मसीह टट्टी मूतर या मसीह मूतर। सही है। समझ आई कि नहीं? खान साहब, बिल्कुल जी, और कोई बात? नीचे कॉलर और भी हैं। जी जी, बड़ी मेहरबानी, मैं इजाजत लेता हूँ, अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह, जी जज़ाकल्लाह। जी। वैसे बड़ी हैरत वाली गल है, अज रिपोर्ट कोई नहीं वजी मुंडियो, कादियानी कॉल पर आए जी, कादियानी कॉल पर आए। अज रिपोर्ट कोई नहीं जे वजी है। बरात टुरदी है भाई, है बरात टुरदी है भाई। हाँ जी, जी कौन है जमान जी? साहब आए, जमान गुज्जर जी जमान साहिब, जी जमान साहिब। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम जनाब। मोहतरम की हाल है, ठीक हो, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मातरत चाहना, कल मैं आया सा तो बड़ा अच्छा मौजू सी, तो फिर मैनू कॉल आ गई, जाना पिया फिर। अच्छा जी, अच्छा जी, जी फरमाएं जी। मेरा मोहतरम कोई सवाल नहीं, मैं वैसे इल्म हासिल कर रहा, अगर कोई दोस्त है नेक्स्ट ले लो। इलम हासिल करना है जमान साहब, जी जी इलम हासिल करना है। जी मोहतरम, समझ आई कि नहीं? ਇਹ ਇਲਮ ਸਾਡਾ दीन ते ईमान है। जी बेशक। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਹਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਣ ਜੋਗੇ ਥੋੜੇ ਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। जी बेशक। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਣ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, इंशाअल्लाह जनाब, इंशाअल्लाह। ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਰਗੜਾ ਦਿੱਤਾ। मकसद भी यही है जी, बस दुआ फरमाया। ਉਹ ਐ ਵੇ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਜੀ ਮੋਹਤਰਮ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ। ਮੇਰੀ ਆਜਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਂਦੀ ਏ, ਹਜੇ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਵਿਊ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੀ ਜੀ ਵੈਲਕਮ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਕੋ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਕਫ ਕਰ ਦਿਓ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰਨਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ठीक हो गया जमान साहब, फिर
ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ मोहतरम। ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। जी जी इंशाल्लाह। योगी बाबा साहब है ने कोई जी ਆਓ ਜੀ ਆਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾ ਦੇਣੀ ਢਾਏ ਚੜ ਜਾਏ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ। ਜੀ ਜੋਗੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ले आए जनाब। हुजूर अस्सलाम वालेकुम जी। हुजूर वालेकुम किबला सलाम। मुफ्ती मुबशर साहब उस्ताद मोहतरम, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे जी, लंबी उम्र दे, सेहतें और तंदुरुस्तियाँ दे, और आप इसी तरह इस काम को आगे बढ़ाते चले जाएं, ठीक है। और इसी तरह इनको जो है ना रड़क पड़ती रहे, और इनके जो है ना वो खारिश अच्छा होती गल रहे, है इसी वे तरह जोगी मर मुक बाबा जाए, ठीक है। गल है वे लानत है वेखो इस कि मिर्ज़ई के ਇਹ ऊपर और हरामी के। ਤੁਹਾਡੇ जी जी ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਇੰਜ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਵੀ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੋਚਦਾ ਜੀ। अच्छा करो गल। बेशक है सही हुजूर। आपके वो कहते हैं ना कि मखलूक खुदा का जो अमल होता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ही होता है ना। अल्लाह पाक चाहता है तो किसी की मोहब्बत दिलों में डाल देता मखलूक। इनसे प्यार क्यों नहीं हो जाता? ठीक है, इनके पास पैसे भी हैं, इनके पास लजने भी हैं खूबसूरत किस्म की, और हर किस्म के इनके पास ज़राए भी हैं, ठीक है। यूरोप और इन ममालिक की इनको जो सपोर्ट भी हासिल है बहुत सारी, ठीक है। इनको प्यार क्यों नहीं करते? इनको भी गली गली जगह जगह कुत्ते क्यों हो रही है? वो हरामी, वो गटर की पैदावार, बोलते हराम मिर्ज़ा लानती हरामी, परले दर्जे का कज्जाब फासिक फाजिर और वो जंदीक लानती, उसको आज तक ये मनवा ही नहीं सके। और ये जो मुरब्बी आया था ना, यकीन कीजिए उस वक्त मैंने काल में उस टाइम से डाल के बैठा हुआ था, इसकी मैंने ऐसी तबीयत फिट करनी थी इधर, मगर गाली की इजाज़त नहीं है, ठीक है। इसको ये ही नहीं पता लग रहा है कि यार ये इतना पढ़ लिखने के बाद भी, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अगर तुम गटर और गंदगी में ही गिरना है तो फिर लानत है तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर, तुम्हारी जहन के ऊपर, तुम्हारी जहानत के ऊपर, और तुम्हारा इंसान होने के ऊपर लानत है। लानत अल्लाह काज़िबीन। ये इसी तरह गटर की पैदावार है और इसी तरह गंदगी में लिथड़े रहेंगे और गंदगी में एक दिन मर जाएंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा हम सब का खात्मा ईमान के ऊपर फरमाए और हमें और हमारी नस्लों को महफूज फरमाए, और मुफ्ती साहब को अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे और नबी उम्र अता फरमाए, और इनके साथ मोहब्बत हमारी तो हमेशा से है और रहेगी। बाकी इनको पीड़ है, इनको रहनी है, तो बाकी इनके लिए दुआ है कि अल्लाह जोगी पाक बाबा इनको आप हिदायत दे दे। वीडियो भी बनाते हैं अपनी आईडी के ऊपर? नहीं सर जी, कोई वीडियो शीडियो कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं ज़ौक नहीं है या तरीका नहीं आता? तरीका है बस, वो टाइम शाइम ही नहीं, बस ऐਵੇਂ वो कहते हैं ना बंदा के ये बैड बोल नहीं, दो चीजें हैं ना कि एक बंदे का ज़ौक नहीं है, ज़ौक दूसरा भी ये है कि और तरीका नहीं है। कुछ ज़्यादा तरीका नहीं है ज़्यादा, वो ना पता नहीं है। ज़ौक है, शक है, बिल्कुल है, ज़ौक है। अच्छा सारे सुने भाई, सारे सुने। आप सब ने वीडियोस बनानी है अपनी अपनी आईडी के ऊपर, सब ने। फैसल हाजिर जी शाह जी, हाजिर वीडियो हाजिर। तेरियां भी कोई बनियां ने कि नहीं? तेरी अपनी वॉइस दे विच अपनी क्रिएशन ऐसी वैसी कोई शाह जी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਕੱਢੀ तेरी ਖੜੇ तो शायद YouTube दी रिकॉर्डिंग होएगी ना? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਲੈਦਾ करना है, ਕਰਤਾ। ठीक है। वेल रसगुल्ला तेरियां है ने भाई कोई? जी है ने कुछ है ने अपनी वॉइस है ते ने अपनी वॉइस जी जी अपनी वाइस ते ही ने सारियां वीडियो। हबीब साहब ਤੁਹਾਡੀਆਂ मेरी हजूर अपनी वाइस से सिर्फ और सिर्फ नाता ने और कादियानियत के उत्ते नहीं है। ਨਾਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਤ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਾ, ਸੁਭਾਨ ਜੀ। ਨਾਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕੈਮਰਾ ਇੰਜ ਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਖੋਲੀਏ, ਇਹ ਸਫਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿਓ ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਏਡਾ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁੱਟ ਦੇ, बस इतना को काम। ठीक है, कोई मुश्किल ही कोई नहीं। मिसाल है, आपके पास किताब नहीं है तो दूसरे किसी मोबाइल के ऊपर वो हवाला खोल लें और उसको दिखा के तबसरा करके वीडियो अपलोड करते, बस इतना तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बिल्कुल 1 मिनट की, 1.5 मिनट की, आधे मिनट की वीडियोस बना के लाइन लगा दे। अपनी अपनी आईडीज के ऊपर आप लोगों ने कोई 100 200 500 वीडियो बनानी है, वादा करते हैं आप लोग सारे करेंगे, इंशाल्लाह। कोई मुश्किल तो नहीं, बहुत आसान काम है, बड़ा ही आसान काम। क्यों जोगी भाई? जी ज़रूर वाला, ज़रूर इंशाल्लाह ज़बरदस्त यह काम करना है भाई, सब ने करना है, इंशाल्लाह सब ने करना। ये ना पता की है, ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਕਿ ਕਿਦੀ ਕਿਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਉਡਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਦੀ ਕਿਦੀ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤੇ 500 ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਲੱਗਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ, बिल्कुल ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ 500 ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਨੂੰ ਕਿਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਲ ਲਾਣਗੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਭਾਈ ਮੁੰਡਿਓ, ਸਾਰੇ ਕੰਮੇ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ WhatsApp ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਵੀ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ YouTube ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। 3 4 5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਵੇ 5 6 ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਲਾਇਲ ਬੜੇ ਆਜਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਲਵੋ, ਓਏ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਹਵਾਲੇ, ਅਸਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਕੈਨ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੋ, ਨੰਗਾ ਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੰਗਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਗਿਰਤੀ ਦੀਵਾਰ ਕੋ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਹੋਰ ਸਹੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਲਾਣਾ ਜੇ, ਨਿਕਲ के नहीं। तो वीडियो बनाओ भाई। अब होगा ये कि कुछ बंदे मुफ्ती मुबशर के राब्ते में हैं, कुछ बंदे जोगी बाबा के राब्ते में, कुछ बंदे हबीब भाई के राब्ते में। तो जिनको मुफ्ती मुबशर का पैगाम नहीं पहुंचा उनको हबीब का और जोगी बाबा का पैगाम पहुंच गए। होगा ये, गल वही है, गल वही रहनी है। सिर्फ होगा ये कि मुफ्ती मुबशर को कोई नहीं जानता होगा, यानी इनके फॉलोवर, लेकिन बात मुफ्ती मुबशर की ही है। समझ रहे कि नहीं? तो सानू अपने नामां दी कोई नहीं लोड़, असी अपने नामां वास्ते नहीं कर रहे। असल ते गल है पैगाम, अवेयरनेस, मुसलमानां नू जगाना, कादियानियां नू करीब लियाना, कादियानियां नू मुसलमान करना, कादियानियां नू हकायक दसने कि वेखो असल हकीकत है। तुहाडे मुरब्बियां ने तुहानू अज तक हनेरे च रखे है। असल हकीकत वो नहीं जिहड़ा मुरब्बी तुहानू दसदा है, असल हकीकत है जिहड़ी तुहाडी किताब च लिखी है। ते यह काम करो भाई सारे, ते सारे ही मेरा तामुन करो। रियल टाइगर वीडियो अजकल बना रहे हैं, अपने ताई एक काम कर, बड़ा जबरदस्त काम है। वो कोई AI जनरेटेड वीडियोज बना रहे हैं, देखो ना भी एक काम है। काम फिर मुख्तलिफ तरीके नाल हुंदा है ते हर एक नू अजर ते मिलना। इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। बेशक अमाल का दारोमदार नियतों के ऊपर है और हर शख्स को वो ही मिलता है जिसकी वो नियत करता है। तो जिसका जैसा काम है उसको उसका अजर मिल जाना। कई जो है वो दलाइल के जरिए कादियानियत का रद्द करते हैं, कोई AI वीडियो के जरिए रद्द करता है, कोई सख्त जुबान इस्तेमाल करके रद्द करता है,
कोई नरम जुबान रख के रद्द करता है, तो कोई हंसी मजाक में रद्द करता है। हर एक का अपना एक स्टाइल है, अंदाज है, लेकिन काम और है। काम एक ही है, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज बदल रहे हैं, अंदाज बदल रहे हैं। हाँ ठीक हो गया जी। अच्छा जी जी जोगी हबीब साहब, जोगी कोई भाई कलर है के ब्राड एंड करिए। हाँ हजूर, नहीं नहीं कॉलर है बाबा जोगी लंबी भाई ब्राड नहीं कर ली। जोगी भाई को जी, जी, बात है कोई? नहीं उस वाला नहीं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सलामत रखिए। व्हाट्सएप ते भी राबता कर लिया करो, व्हाट्सएप ते भी राबता कर लिया करो। कोई हेलो हाय हो जाती है, कोई रियल हवाला टाइगर जी, पुछना आए ते मेरे को पुछ लिया करो। हाँ रियल टाइगर आ ही गया। हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। और बाबा वीडियो तेरी बड़ी कमाल है। बल्ले शुक्रिया रियल टाइगर बनाता है वीडियो, पहले ते जुत्ती मार देना रख के मिर्दे दी पछवाड़े ते, उस तो बाद ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਓਏ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੂ ਪੜਦਾ ਹੈ। मुफ्ती साहब एक वीडियो आई है, वो नहीं मेरे ख्याल तुसी वेखी, मैं तुहानू भेजना। नूरा नूरा ले गया नुसरत नू अंदर। अच्छा गेम ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਗੇਮ ਨਾ ਵਹਾਈ ਓਏ। नहीं गेम नहीं, बस अगे तो सारे ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਝ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੰਬੀ ਲਾਈ ਹੋਏ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ। नहीं जी ਉੱਤੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਤੰਬੀ ਜਦੋਂ ਲੱਥੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਲੋਰ ਕਰ ਦੇਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ओके मेरी मुफ्ती साहब मेरी आईडी उड़दी भी नहीं है, मैं अपलोड ना ही करा चलेगी। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੰਜ ਦੀ ਆਈਡੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਤੇ एक ਉੜਦੀਆਂ मेरी ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। एक आईडी चल रही है मेरी 2 साल तो, मेरी आईडी चल रही है, ਉਹਦੀ ਲਾਈਵ ਨਾ ਬੈਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹਾਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ठीक है शरारती है तू वैसे भी थोड़ा थोड़ा। नहीं फिर मुफ्ती साहब मैं फिर अपने तरीके नाल जेड़ा मेरा सिस्टम बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक है बाबा जी। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਟਾਈਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਵੇ, ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਵੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੀ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਾਵੀਏ ਚ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਾਵੀਏ ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਵਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਆਪ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਬੜਾ ਵੇਖਦੀ ਏ, ਉਹ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਪ ਕੀ ਅਦਾਲਤ, ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ 2 ਐਪੀਸੋਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਾਏ ਨੇ YouTube ਤੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਬੜੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਗਲ ਜੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈ ਕੀ ਬਲਾ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਫੈਸਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਯਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ 200-400 ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬਿਠਾਓ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ, ਉਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ, ਡਾਇਲਾਗ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਨੇਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਛੱਡੀ ਏ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਿਲਾਲ ਹਨੀਫ ਭਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 400-500 ਸਫਾ ਪੜ੍ਹ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਆਈਡੀਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ। ਓਏ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਆਈਡੀਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ AI ਦਾ ਦੌਰ ਏ, ਬਕਾਇਦਾ AI ਵੀਡੀਓ ਬਣੇ ਔਰ ਡਾਇਲਾਗ ਉਹੀ ਹੋਣ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। जी शाह जी मैं कोशिश करना हूँ इंशाल्लाह। ਇਹ ਰੀਅਲ ਟਾਈਗਰ ਇੰਜ ਵੇ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੈਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਤੇ ਜਾਂ 2 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ। जी मसला नहीं इंशाल्लाह ताला। ਉਹ ਉਂਝ ਮੌਲਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗਾ।
ਉਂਝ ਹੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣੇਗੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਬਣੇਗੀ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਬਿਠਾਏਗਾ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਉਲਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਕਰਾਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਖਿਆਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਓਰੀਜਨਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਵੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਓਰੀਜਨਲ ਹੀ ਪਿਕਚਰਾਂ, ਸਭ ਓਰੀਜਨਲ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਇੰਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੰਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਸ ਹਰ ਠੀਕ ਹੋ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਮੈਂ AI ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਦਿਨਾਂ ਚ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਸਾਂ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਅਨ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਵਾਇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ, ਵਾਇਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ AI ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਈ ਧੂਆਂ ਪੱਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ AI ਵੀਡੀਓ ਬਣੇ ਪੂਰੀ। ਜੀ ਬੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਖਾਲਦ ਨੇ। ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब, क्या हाल है साहब? ठीक हो? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? अल्लाह दा शुक्र है मुफ्ती साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਸਲ ਇਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਸ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟਦਾ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਵੀਲ ਅੱਜ ਡਰ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਰਾਡ ਐਂਡ ਕਰਨ ਹੀ ਲੱਗਾ ਬਸ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੁਝ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਉਹ ਨਾ 8-10 ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਂਡ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਲ 'ਚ ਰੱਖਾਂ। ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਭਾਈ, 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਤੇ ਠੀਕ किताब की इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।